नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी हमारे इंडिया में टैरिफ के लगाया है उसके डेटा पॉइंट से जुड़े हुए कि क्या-क्या चीजें और क्या-क्या इम्पैक्ट हमारे यहाँ इकोनॉमी में इसका हो सकता है और इसके क्या असर हो सकते हैं अमेरिका के ऊपर और इसको इंडिया कैसे इसको डील करने की सोच रहा है और इस पूरे डील में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ट्वीट किए हैं। जो सबसे पहला ट्वीट था उन्होंने ये किया कि रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia and Russia's largest buyer of energy, along with China, at a time when everyone wants Russia to stop killing Ukraine. All things not good, India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty of the above starting on August 1st. Thank you for your attention on this matter. इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया जो आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया दे कैन टेक देयर इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर we have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. And 10 Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he is still president, to watch his words. He is entering very dangerous territory. और एक और ट्वीट उन्होंने इस पे किया वी आर वेरी बिजी इन व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन अ ट्रेड डील्स आई हैव स्पोकन टू द लीडर्स इन मैनी कंट्रीज ऑल ऑफ देम who want to make the United States extremely happy. I will be meeting with South Korean trade delegation this afternoon. South Korea is right now at 25%, but they have an offer to buy down these tariffs. I will be interested in hearing what that offer is. We have just concluded a deal with the country of Pakistan, where Pakistan and United States will be working together in developing the massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows? Maybe they will be selling oil to India someday. Likewise, other countries are making offers for a tariff reduction. All of this will help reduce our trade deficit in a very major way. A full report will be released at the appropriate time. Thank you for your attention to this matter. Make America great again. इस तरीके से उन्होंने 3 ट्वीट किए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है भारत के प्रति और किस तरीके की बातें उन्होंने बात करी है कि भारत को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और इस तरीके की काफी और चीजें जो है तो सोशल मीडिया में चल रही हैं। लेकिन ये 3 ट्वीट हैं। इसके बाद जो है तो भारत सरकार की तरफ से पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में रिप्लाई किया है। उन्होंने ही स्पोक इन लोकसभा एंड राज्यसभा हाईलाइटिंग इंडिया शिफ्ट फ्रॉम फ्रेजाइल इकोनॉमी टू on track to become the world's third largest countering Donald Trump's dead economy remark. US tariffs. Trump's April 2 executive order imposed 10% baseline tariffs. India faced a 26% duty, including additional tariffs. These country-specific tariffs were suspended for 90 days, later extended till August 1st. India-US trade talks के बारे में उन्होंने बताया started March 2025 for a fair and balanced bilateral trade agreement. Target date जो थी वो थी फर्स्ट फेज बाय अक्टूबर नवंबर 2025. मीटिंग फर्स्ट फिजिकल मीटिंग इन न्यू दिल्ली, 4 मोर इन न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन प्लस सेवरल वर्चुअल मीटिंग्स. ये सारी चीजें जो है तो बताई गई. अब समझते हैं कि आखिर ये पूरी की पूरी जो ट्रेड डील है उसमें क्या क्या भारत को नुकसान हो सकता है. तो सिटी बैंक की एक रिपोर्ट है उसके अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो यूएस टैरिफ जो है 25% लग जाएगा जो कि हमें बताई है 1 अगस्त से. जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है 40 बीपीएस पॉइंट्स का, मतलब 0.40% का 2025 और 26 ग्रोथ पे आ सकता है. एक्सपोर्ट लॉस जो है वो उम्मीद की जा रही है $6 to 7 बिलियन पर ईयर का अक्रॉस वल्नरेबल सेक्टर्स पे हो सकता है. आरबीआई रेट कट्स हो सकते हैं 0.75,
एडिशनल बीपीएस से पोटेंशियली टू 5.5% के आसपास जा सकता है। सेक्टर आउटलुक कहता है कि टारगेटेड रिस्क इन ज्वेलरी, फार्मा, ऑटोज, फार्मा टैरिफ सीन एज अनलाइकली ओवरऑल। इक्विटी आउटलुक अगर बात की जाए तो इंडिया ओवरवेट, यूएस न्यूट्रल। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए। अब बात करते हैं, ये सिटी बैंक की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का एनुअली भारत को जो है तो नुकसान हो सकता है इस ट्रेड डील से। अब अगर इंडिया और यूएस के ट्रेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गुड्स की जो कॉस्ट है वो लगभग 80 बिलियन डॉलर के आसपास है। 25% टैरिफ इंपोज किया गया। वहीं अगर सर्विसेज की बात की जाए तो 210 बिलियन यूएस डॉलर्स, नो टैरिफ अभी लगाए गए हैं, उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। फार्मा सेक्टर में 8 to 10% इनडायरेक्टली अफेक्टेड है वो। डेयरी और एग्रीकल्चर जो है एक्सेस अंडर नेगोशिएशन में अभी भी चल रहा है कि अगर क्या अमेरिकी बाजार को डेयरी और एग्रीकल्चर में कोई भी एक्सेस देनी है, इस बारे में अभी भी बात चल रही है। अब यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं अगले साल। आपको इस बात को मैं बता देता हूं कि इस सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है, मागा जो ट्रंप का कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का, वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो किस तरीके से ट्रेड बैरियर्स को, ट्रेड में अपने मन की बातें मनवा सकें और शायद अगले साल जो 2026 नवंबर 2026 में जो चुनाव है अमेरिका में, मिड टर्म इलेक्शंस, उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इलेक्शंस हैं 3 नवंबर 2026 को। उसके बाद ऑल 435 सीट्स विल बी कॉन्टेस्टेड। यूएस सेनेट में 35 आउट ऑफ 100 सीट्स विल बी कॉन्टेस्टेड। ये सारी चीजें अमेरिका में होने वाली हैं। तो आप इस बात को समझिए कि यूएस में जो मिड टर्म इलेक्शन है उसका भी इंपैक्ट जो है इस ट्रेड डील में पड़ने वाला है। अब भारत से अमेरिका एक्चुअली चाहता क्या है? तो सबसे पहले वो चाहता है कि कोई ट्रेड डील मिल जाए, डिफेंस डील मिल जाए। डिफेंस डील किस तरीके की कि अगर भारत कोई F-35 या फिर कोई भी ऐसा कोई भी डिफेंस डील कर ले। F-35 की बात बहुत तेजी से चल रही है कि, लेकिन उसका डिसीजन इंडियन एयरफोर्स लेने वाला है। ऑयल इंपोर्ट्स क्या है कि रशिया जो है, अभी हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं रशिया से। अमेरिका चाहता है कि हम अमेरिका से तेल खरीदना चालू करें, जो कि 20% हायर है ऑयल प्राइसेस। अगर अमेरिका के रशिया के कंपैरिजन में अमेरिकन ऑयल 20% हायर रेट पे है। टैरिफ एक्सेप्टेंस चाहता है और इंडिया को चाहता है कि वो 25% की एक ड्यूटी को एक्सेप्ट कर ले। सर्विसेज कंट्रोल चाहता है, टैरिफ थ्रेट ऑन आईटी दे सकते हैं, और जो कि यूएस कंपनीज को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो लेकिन अभी क्या उम्मीद की जा रही है कि शायद जो आईटी सर्विसेज सेक्टर है उस पर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन खतरा उस पर भी मंडरा रहा है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि वो अगर उस पे कोई भी टैरिफ लगता है तो ये सीधे सीधे अमेरिकन कंपनीज को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वहां का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे इंडियन सर्विसेज कंपनी चला रही हैं इंडिया से। मार्केट एक्सेस की बात की जाए तो अमेरिका चाहता है कि उसके जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया में एक्सेस मिल जाए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इंडिया का जो होम ग्रोन मार्केट है डेयरी और एग्रीकल्चर का, उस पर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट दे सकता है। जहां पर इस समय एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ सबसे ज्यादा अगर किसी भी सेक्टर में देखी गई भारत में रिसेंटली, तो वो है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब स्टेक पे, व्हाट इज दैट स्टेक फॉर इंडिया? अगर इसकी बात की जाए तो $7 बिलियन लॉस बट नॉट इरिवर्सिबल। देखिए, $7 बिलियन का लॉस जो है उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि क्या है कि ऐसा ही रहे। लेकिन अब देखिए, गुड्स अफेक्टेड बाय 25% टैरिफ, $80 बिलियन है। सर्विसेज सेक्टर $210 बिलियन का है। ट्रंप जो है बहुत मुश्किल है कि सर्विसेज सेक्टर को टच करें, क्योंकि उससे अब सिलिकॉन वैली की जो कंपनीज हैं उनमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब फार्मा प्रेशर की बात करें, यूएस को भी इंडिया की जो जेनेरिक मेडिसिन है उसकी बहुत जरूरत है। एनी एस्केलेशन वुड रेज मेडिसिन प्राइसेस इन द यूएस। मतलब अमेरिका में जो जेनेरिक मेडिसिन है 8 to 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडिया से जो सप्लाई होती है उस पे बहुत, उसकी वजह से काफी सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मेडिकल और जो गरीब लोग हैं या फिर मतलब लो इनकम ग्रुप है अमेरिका में, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इंडिया से जो मेडिसिन जाती हैं वो। अब इसके बाद हिडन बैटल क्या है? हिडन बैटल ये है कि यूएस जो चाहता है कि एंट्री चाहता है एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट में इंडिया के।
जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर इंडिया इस डेयरी मार्केट और एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन करता है अमेरिका के लिए। यूएस का कॉर्पोरेट फार्म और जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं वो शायद इंडियन कंपनीज उनके सामने उस तरीके से compete ना कर पाए, और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर हो रखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अब वो चाहता है कि रेसिप्रोकल प्रोसेस की तरह बात करना चाहते हैं, मतलब वो अमेरिका ये चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है करीब 45-46 डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और अमेरिका के बीच में इंडिया के पक्ष में, उसको वो चाहता है कि वो कम कर सकें। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये जो ट्रेड की जितनी भी डिबेट चल रही है वो इन सब चीजों पे चल रही है। अब इंडिया को क्यों रजिस्ट करना चाहिए? डेयरी सेक्टर जो है, यूएस डेयरी प्रोडक्ट जो है नॉन वेजिटेरियन कैटल फील्ड में और इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, नॉन वेजिटेरियन कैटल फीड होते हैं वहां पे। 80 मिलियन इंडियन जो है फैमिलीज जो है वो स्मॉल स्केल डेयरी प्रोडक्ट पे रिलाई करती हैं, और चीप और इंडस्ट्रियलाइज यूएस डेयरी प्रोडक्ट जो है वो अमूल और नंदिनी जैसे होम ग्रोन इंडिया के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो सिस्टम है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं बिग टाइम। अब एग्रीकल्चर में क्या बात है कि यूएस जो है वो जीएम क्रॉप्स जैसे कॉर्न, सोयाबीन एक्सेट्रा जो है इंडिया में लेके आना चाहता है। अमेरिका जो है बहुत ज्यादा हैविली सब्सिडाइज्ड इंडियन फार्मर्स सब्सिडाइज करता है इन चीजों को, जिसे इंडियन फार्मर्स उस तरीके से compete नहीं कर पाएंगे उस कॉस्ट को, और इससे प्राइस जो है एमएसपी बेस्ड सिस्टम और फार्मर अनरेस्ट को भी बढ़ावा ये दे सकता है। अब बात करते हैं कि इंडिया की डेडलाइंस क्या है और जो कि निगोशिएट करना जरूरी है। डेयरी एक्सेस टू इंडियन मार्केट बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं। ऑयल रजिस्ट कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसमें कोई ऐसी डील की जा सकती है कि हम कुछ हिस्सा जो है तो अमेरिका से खरीद सकते हैं एक फेयर डील के तहत। इसमें कोई निगोशिएशन हो सकता है। F-35 खरीदने की बात चल रही है। अगर इंडियन एयरफोर्स को वो प्लेन पसंद है, 5th जनरेशन का है, और अभी इसराइल और भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, वॉर में काफी प्रूवन प्लेन है, अगर चाहे तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इससे दिक्कत होगी कि Su-57 जो रशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्लेन आने वाला है, 6th जनरेशन का ही प्लेन है वो रशिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उस पर भी इम्पैक्ट कर सकता है अगर ये Su-57 इंडिया ने फाइनल नहीं किया। तो इंडिया के पास में F-35 Su-57 के बीच में चूज करना पड़ेगा। सर्विसेज की बात करें अगर, तो सर्विसेज जो है तो इसमें ज्यादा इम्पैक्ट होने की चांसेस नहीं है। सर्विसेज सेक्टर में खासतौर से आईटी सर्विसेज बहुत बड़ा मार्केट है और उस सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस नहीं है। सर्विसेज सेक्टर में क्या मैक्सिमम अगर कुछ 2% 1-2% का टैरिफ अगर आता भी है, और अगर भारत को लगता है कि कुछ वो कर सकता है उस पर, तो वो निगोशिएट किया जा सकता है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और इस डिस्कशन को अगर वो देखिए, बात तो है कि इससे इम्पैक्ट तो आएगा इंडियन इकोनॉमी में। 7-7 बिलियन डॉलर हमारी लगभग 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर आसपास की इकोनॉमी है, उस पे इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमें एक प्रोसेस ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म में जब भी हम कोई भी ट्रेड डील करेंगे, आज जो ट्रेड डील करेंगे इसका प्रेशर अभी 3 साल 4 साल तक नहीं रहेगा। इसी ट्रेड डील के बेसिस पे कब तक इंडिया जो है वहां पे स्ट्रांग खड़ा रहता है और कितना स्ट्रांग खड़ा दिखाई देता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले 15-20 साल 25 साल जो भी आने वाली सरकारें होंगी उनके लिए कितना फिजिबल होगा ट्रेड डील्स करना अमेरिका के साथ में। इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए और भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म गेम में ध्यान देना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान दे बिना। अब 25% टैरिफ जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है, लेकिन इलेक्शंस आ रहे हैं, डोमेस्टिक लॉबी जो है वो पुश करेगी कि अमेरिका की भी अगर उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया से जो प्रोडक्ट जाते हैं वो भी वहां पे बेचते हैं, तो इन सब चीजों में बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो डोमेस्टिक लॉबी का भी प्रेशर जनरेट होना चालू हो जाएगा कुछ महीनों में, अगर ये ट्रेड डील कुछ महीने खिंच जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ प्रेशर में आए। इंडिया और की जो फार्मा और आईटी सर्विसेज हैं वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत के लिए, और भारत को कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कोई भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट दिखाई ना दे।
निगोशिएशंस को डिले करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये अगले साल तक पहुंच जाए। और इंडियन मार्केट को, डेयरी और एग्रीकल्चर को यूएस के लिए ओपन नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। ऑयल की जहां तक बात है, रशियन ऑयल खरीदने की बात है, तो रशियन ऑयल शायद कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं कि रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ट्रेड डील फाइनल करने में वो एक ऑब्स्टिकल बन रहा है, तो शायद कुछ परसेंटेज वहां रशिया से डिक्रीज करके अमेरिका से भी खरीदा जा सकता है। और फार्मा और सर्विसेज इंडस्ट्री को एक प्रेशर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा मसला यहाँ पर जो इस बात पे जुड़ा हुआ है कि कौन कितनी देर तक, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, राइट। यहाँ पे अगर ये गेम है हु ब्लिंक्स फर्स्ट, भारत को प्रयास ये करना चाहिए कि किसी भी तरीके से इसमें हार्ड बार्गेनिंग करे। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं और गुजराती जो जीन्स होती है वो बहुत अच्छे बार्गेनर्स और बिजनेसमैन माने जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उसी तरीके से, मतलब एकदम कोर नेगोशिएटर की तरह, बिल्कुल बार्गेनिंग के तहत जाकर के कम से कम चीजों में नेगोशिएट करने का प्रयास करें, जिससे कि इंडियन इंटरेस्ट, जो लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट हैं, वो हमारे नुकसान, हमें उसका नुकसान ना हो। आप जरूर बताएं कि क्या भारत को इस पूरे प्रोसेस में में जो ये ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसमें भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए। और एक और बात, ये जो सोशल मीडिया में ट्रोल आर्मी चलती है, उसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क आता है। आप जरूर बताएं कमेंट्स में आप इस पूरे टैरिफ वॉर के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि भारत को इसके बारे में क्या करना चाहिए। अगली खबर के लिए जुड़े रहें सटीक नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।